Hello students, today we are here again for the chapter The Story of Cricket, written by Ramchandra Guha. So let's start this story of cricket. Introduction of this story. The story deals with the history of cricket, the popularity of cricket in the bird white. The content of the story are very interesting, though long and challenging. The photograph given in between arouses interest among the students. The contribution of television in cricket is visible. Its coverage has changed the shape of cricket. It has broadened cricket social base. India has one of the largest viewership for the game amongst the cricket playing nations. The present time conditions have made the Indian players the best paid, most famous cricketers in the game. Now, the summary of this chapter is the story discusses the evolution of cricket. Its history, it is told in a historical perspective that becomes interesting for the student to read. It is quite long but full of knowledge-based fact. The photograph enhances the interest of the student in the lesson. Most children know about this game, so they hold their interest. The story starts with the detail of the game, how when it was started, progressed, reformed itself. The origins of Indian cricket are to be found in Bombay. The first Indian community to start playing the game was Zoroastrians, the Parsis. With the passage of time, the game's equipment has changed, but fundamentally remained true due to its origins in rural England. Modern cricket is dominated by Test and one-day internationals played between national teams. Television coverage changed cricket. It expanded the audience for the game by beaming cricket into small towns and villages. It also broadened cricket's social ways. Cricket loves this game today. The global marketplace has made Indian players the best paid, most famous cricketers in the game, men for whom the birds is a stage. Okay, this is the summary of this chapter. Let's start once in हिंदी. ये जो चैप्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट खेल एक स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यही एक ऐसा तरीका है जिससे हम आपको खुश रख सकते हैं, हम भी खुश रह सकते हैं और आपको भी, दूसरों को भी खुश रख सकते हैं, एक दूसरे का मुकाबला कर सकते हैं. और किसी ने तो सत्य ही कहा है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो वॉर होते हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री में, तो गेम इज़ द बेस्ट रेजोल्यूशन ऑफ द वार. वो कैसे, अगर खेल जीत में कोई हारता जीतता है तो उसमें कोई भी हानि नहीं होती है, जन हानि नहीं होती है. तो इसलिए क्या है, हम गेम को एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में रख सकते हैं
जो वॉर है उसको गेम के द्वारा हम निपटा सकते हैं, जिससे कि कोई भी जनहानि ना हो और हार जीत का भी फैसला हो जाए। तो ये जो स्टोरी है वो क्रिकेट की है। क्रिकेट आज कल इंडिया में सबसे अच्छा मनोरंजक गेम माना जाता है। क्रिकेट 500 वर्ष पहले इंग्लैंड में लकड़ी की छड़ी और बॉल के खेलों में पैदा हुआ था। बैट शब्द लकड़ी का एक पुराना शब्द है जिसका अर्थ है छड़ी या क्लब। 17वीं शताब्दी तक क्रिकेट सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल बन गया था। 18वीं शताब्दी के मध्य बल्ले हॉकी की तरह छड़ी की भांति होते थे, बाहरी ओर से थोड़े से नीचे मुड़े हुए होते थे। तो पहले जो बैट थे वो अलग तरीके से होते थे और अब उनका बदलते बदलते उनका स्वरूप कुछ और हो गया। अब उनका स्वरूप आज इस कंडीशन में है कि बैट बिल्कुल मुड़ा नहीं होता नीचे की साइड से, लेकिन पहले छड़ी जैसा होता था। क्रिकेट की एक खासियत यह भी है कि उसकी जो पिच की लंबाई है वो 22 यार्ड्स की है, परंतु मैदान का जो माप थी और इसका आकार नहीं होता था पुराने दिनों में। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता था। मैदान जो अंडाकार है ऐसे एडलेड ओवल या लगभग गोलाकार होते थे। मेलबर्न क्रिकेट मैदान में फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है के मुकाबले एक छक्के को मार करने में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी, क्योंकि ओवल उसमें होते थे, उसके जो मैदान होते थे क्रिकेट के वो। भारतीय क्रिकेट का आरंभ मुंबई में हुआ था। जो प्रथम भारतीय समुदाय जिसने यह खेल खेलना प्रारंभ किया था वह था पारसीज जोरास्ट्रियन का एक छोटा समुदाय। अंग्रेज़ों के साथ उनके व्यापार में रुचि दिखाने के कारण नज़दीकी और पहला भारतीय समुदाय जो पश्चिमी सभ्यता को पसंद करता था। इस कारण पारसियों ने पहले भारतीय क्रिकेट क्लब द ओरिएंटल क्लब की स्थापना की थी 1848 में। बम्बई में की थी इसकी स्थापना। जो पारसियों के क्लब का पैदा और प्रायोजन पारसी व्यापारियों जैसे टाटा और भाटिया द्वारा मिलता था। भारत के जो श्वेत क्रिकेट विशिष्ट वर्ग उत्साहित पारसियों को कोई मदद नहीं की। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बिल्कुल भी पारसियों की कोई भी मदद नहीं की, बल्कि मुंबई जो जिम खाना है वो पारसी क्रिकेट और जो अंग्रेज़ हैं उनके पारसी क्रिकेटों के बीच एक सार्वजनिक पार्क को लेकर झगड़ा भी हुआ। पारसियों ने शिकायत दर्ज की कि पार्क क्रिकेट खेलने के लिए उचित नहीं है, क्योंकि मुंबई जिमखाना के पोलो के घोड़े पूरी ज़मीन खोद देते थे वहाँ पर। जब यह साफ हो गया कि उच्च अधिकारी जो अंग्रेज़ थे हमवतनों की ओर से मतलब वो पक्षपात करते थे एक दूसरे की तरफ, ये हो गया तो पारसियों में और अंग्रेज़ों में एक झगड़ा बना रहता था और अंग्रेज़ कभी भी पारसियों की इस गेम में सहायता नहीं करते थे। आधुनिक क्रिकेट मैचों में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आधिकारिक है जो राष्ट्रीय टीमों के बीच खेले जाते हैं। वे खिलाड़ी जो मशहूर हुए, जो जनता की क्रिकेट की यादों में रहे, वो अपने देश के लिए खेले। आज भी क्रिकेट क्या है, भारत का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम है क्रिकेट जो। अच्छा, भारत ने टेस्ट क्रिकेट में 1932 में प्रवेश किया था। सबसे पहले जो मैच खेला गया था टेस्ट क्रिकेट वो 1932 में खेला गया था। आज़ादी प्राप्त करने के लगभग 1.5 दशक पूर्व यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि टेस्ट क्रिकेट 1857 से अपने जन्म स्थान से ब्रिटिश साम्राज्य के अलग अलग भागों में एक प्रतियोगिता के तौर पर आयोजित किया जाता था, न कि प्रभुसत्ता और समृद्धि राष्ट्रों के मध्य में। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला गया तब ऑस्ट्रेलिया एक श्वेत समुदाय अंग्रेज़ों का समुदाय था। इसी तरह कैरेबियन के छोटे राज्यों से मिलकर वेस्ट इंडीज की टीम बनती है, वो भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश समुदाय के थे।
टेलीविज़न प्रसारण में क्रिकेट को बदल दिया। इसने क्रिकेट के खेल को छोटे कस्बों और गांव तक पहुंचाकर दर्शक बढ़ा दिए। इसने क्रिकेट के सामाजिक मूल्य को भी बढ़ा दिया। बच्चे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेल देखने का मौका इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि वे बड़े नगरों में बाहर रहते थे, आप देख और हीरो की नकल करके सीख सकते थे। टीवी में अगर क्रिकेट मैच आता था तो सभी अब उसको गांव-गांव और शहरों में, कस्बों में, छोटे से छोटे गांव में भी उसको देख सकते थे। 150 वर्ष पूर्व पहले भारतीय क्रिकेट पारसियों और क्रिकेटरों के लिए एक खुले स्थान के लिए मेहनत करनी पड़ी थी। मतलब उनके लिए पहले जो क्रिकेट के जो स्टेडियम थे वो भी, मैदान भी नहीं थे खेलने के लिए। आज क्या है, आज सार्वभौमिक बाजार ने भारतीय खिलाड़ियों को सबसे अधिक पैसा, सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर बना दिया है। आज जो क्रिकेटर हैं उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। ऐसे खिलाड़ी जिनके लिए संसार एक मंच है, यह परिवर्तन बहुत से छोटे बदलावों से बना है। अब व्यवसायी 100 में इंसानों के स्थान पर व्यावसायिक खिलाड़ी, एक दिवसीय खेल के चाव ने टेस्ट क्रिकेट को प्रसिद्धि के मापदंड पर ढांक दिया। अब जो एक दिवसीय क्रिकेट है वो ज़्यादा पॉपुलर है और अब तो 2020 क्रिकेट भी आ गया है। तो जो कम समय लेते हैं और उनका, जिनका हार जीत का फैसला जल्दी हो जाता है, वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और सार्वभौमिक वाणिज्य तकनीक में अब जैसे सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट खेला जाता था और फिर वनडे क्रिकेट आया, अब 2020 आ गया। तो समय समय पर क्रिकेट में बदलाव होते रहते हैं और ये हिस्ट्री है इसकी, क्रिकेट की। आई होप आपको सभी को बहुत ही पसंद आई होगी।